So students, let us begin our chapter number 12, exercise 12.1, Heron's formula. Exercise 12.1. First sum, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If the perimeter is given 180 centimeter, what will be the area of signal board? Now pay attention. What you are given? You are given a triangular signboard like this, in which you are given, यहाँ पे ऐसा लिखा है school ahead, and this is a equilateral triangle. Equilateral triangle means all the sides have same length, which is also given to us, and that is A. Okay. Now you are asked what to find the area of this using Heron's formula. Okay, and you are given that perimeter is equals to 180 centimeter. As you all know, what is perimeter? Sum of all three sides. So P is A plus A plus A, and that is equals to 3A, and perimeter given is 180, right? Therefore 3A is equals to 180 and A is equals to 180 divide by 3, and that is 60 centimeter. मतलब A जो है वो अपना क्या आ गया 60 each. Okay, now what you are given, you are asked to find Heron's formula, area of triangle by Heron's formula. As you all know, what is Heron's formula? It is under root S minus A, S minus B and S minus C. यहाँ पे अपना A ही B है और B ही A है और C ही A है और सब कुछ A लगेगा. क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए. So what I will do is, पहले तो मैं S की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं. S is nothing but A plus B plus C and divide by 2. As you all know, A, B और C तीन क्या है? इक्वल है. So what I will write? A plus B की जगह A plus A upon 2. 3A upon 2. A की वैल्यू आपको पता है, which is 60. Okay, तो 3 into 60 upon 2. Right? 2 ones are 2 30s are and 3 3s are 90. ओके, ये 90 सेंटीमीटर आ गई S की वैल्यू. एक और मेथड से भी कर सकते हो, ये इतना सब लंबा करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको पेरीमीटर दिया है ना, तो सेमी पेरीमीटर स्ट्रेट अवे उसका हाफ होता है, क्योंकि पेरीमीटर क्या है A प्लस A और सेमी पेरीमीटर क्या है A प्लस A बाई 2 बराबर है. सो व्हेन यू आर गिवन दैट perimeter is 180, then your semi perimeter will be exactly half, and that is 90 centimeter. Now what? Area of triangle ही find करना है, तो area is equals to under root S. मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखी है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं. 90 minus 30, 60, क्योंकि A की वैल्यू है. 90 minus 60 and 90 minus 60. ओके, अब ध्यान से देखना, कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये समझना ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 90 into 30 into 30 into 30. अगर अंडर रूट में 2 times 30 है, तो बाहर कितनी बार निकल के आएगा? 1 टाइम, बराबर है. अंडर रूट में 2 बार कोई भी चीज हो, सपोज ऐसा समझो 4 है, तो 4 को हम लोग अंडर रूट में क्या लिखेंगे? 2 into 2, और बाहर क्या निकलेगा वैल्यू? 2, राइट? सेम वे अगर अंडर रूट में 2 बार 30 है, तो बाहर कितनी बार आएगा? 1 टाइम. सो बाहर आ गया 1 टाइम 30, तो भी अंदर क्या बचा? 90 into 30. अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो. ये 90 into 30 को ना मैं अब पहले तो जो 30 है वो ऐसे का वैसा ही है. नाउ
9 into 10 लिखा एंड 3 into 10 लिखा. ओके 90 को 9 टेंजा लिख दिया और 30 को 3 टेंजा लिख दिया. अब 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 10 टेंजा 100 होगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है. सो 9 का परफेक्ट स्क्वायर मतलब 30 into 3 हो गया ये, राइट. और ये 2 टाइम है तो बाहर कितनी बार आएगा? 1 टाइम. तो ये हो गया 10 और बचा क्या? अंडर रूट 3. बराबर, सिर्फ एक अंडर रूट 3 बचा. 3 3 जा 9 और ये 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट सम. Sum number 2. The triangular side walls of flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. Sides of the wall are, let's say A is equals to 122 meter, B is equals to 22 meter and C is equals to 120 meter. The advertisement yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? अब rent find करने के लिए सबसे पहले क्या find करना पड़ेगा? Area of a triangle. क्योंकि area से पता चलेगा कि उन्होंने इतना area use किया है. इतना area use करने के बाद उन्होंने जितना यूज किया है उसका डिवाइड बाय 3 मंथ्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हायर कितने मंथ्स के लिए कर रहे हैं? 3 मंथ्स के लिए. ओके, सो नाउ पे अटेंशन. ए, बी और सी आपके पास है. दैट मींस व्हाट फॉर्मूला नाउ यू विल यूज? सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे. सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज डिवाइड बाय 2. 122 plus 22 plus 120 whole divide by 2. 122 plus 22 is 144. 144 plus 120 will be 264 if I am not wrong. बराबर है, it is nothing but 264 divide by 2 and that is nothing but 132 meter. ये आया S. Now we are going to find what? Area of a triangle. Area of triangle आप सबके पास फॉर्मूला है nothing but under root S, S minus A, S minus B, S minus C. Right? Now what is your S? 132. Then 132 minus 122. Then 132 minus 22 and lastly 132 minus 120. अब कैलकुलेशन पे खास फोकस करना. वन 132 is written as 11 12 बराबर है. 11 12 करोगे तो इट विल बी 122. 11 11 121 होता है. 11 12. Now 132 minus 122. 132 minus 122 is nothing but 10. And 132 minus 22 is nothing but 110. And 132 minus 120 is nothing but 12. Okay? Now pay attention. 2 बार 12 है. दिख रहा है? तो सीधा स्ट्रेट अवे 1 बार 12 बाहर आ गया. बराबर. नाउ व्हाट? 1 बार 11, ये 10 और ये इसको मैं सेपरेट कर दूंगा वापस. 11 into 10 बराबर. दैट मीन्स 12 2 बार 11 मतलब बाहर आएगा सिंगल टाइम 11. 2 बार 10 मतलब आएगा बाहर सिंगल टाइम 10. 12 into 11 अभी अभी देखा 132 into 10 बराबर है. तो 1320 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया. अपने को फाइंड क्या करना है? अपने को फाइंड करना है रेंट. तो रेंट फाइंड करने के लिए अब वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन में ऐसा लिखा है द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर.
एक साल का 5000 मीटर पर मीटर स्क्वायर का उनका रेंट कितना है? उनका रेंट है 5000 रुपीज। सो अब ध्यान से देखना, पर मीटर स्क्वायर ₹5000 पर ईयर मतलब डिवाइड बाई 12 लिख सकते हैं, बराबर है, डिवाइड बाई 12 पर ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए बोल रहा हूं। एंड अपने को कितने मीटर स्क्वायर लिया है इन लोगों ने? 1320 मीटर स्क्वायर। सो पर 1320 मीटर स्क्वायर, और कितने महीनों के लिए लिया है? ओनली फॉर 3 months। ओके, दे हैव टेकन दिस ओनली फॉर 3 months। सो जो भी आंसर होगा मल्टीप्लाई बाई 3/12 करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई बाई 3/12? क्योंकि ये इन लोगों ने पर ईयर का रेंट दिया है, हम लोग सिर्फ 3 months का ले रहे हैं इसलिए। सो योर कैलकुलेशन नाउ विल गो फ्रॉम हियर, तो इट विल बी 1320 multiply by 5000 multiply by 3/12, बराबर है 3 1 3 4 बराबर। नाउ अब कैलकुलेट करोगे तो 4 1 एंड 4 3 12, 4 3 12 एंड 3 30 ओके, एंड 333 into 5 करो तो 3 5 15, 3 5 15 and 1 65, 10 and 000 rupees। So उन्होंने कितने में लिया? ₹16,50,000 3 months का होल्डिंग का आता है। So that's the end of our sum number 2। Moving ahead, sum number 3। There is a slide in a park। स्लाइड मतलब जो आप लोग लसर पट्टी जिसको बोलते हैं वो। One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean। If the sides of wall are, let's say, A is equals to 15 meter, B is equals to 11 meter, and C is equals to 6 meter, find the area painted in color। So you are provided with A, B and C, you need to find area of a triangle। Area of a triangle can be find out as, पहले तो S find करना पड़ेगा, that is nothing but A plus B plus C divided by 2, 15 plus 11 plus 6 divided by 2, 15 plus 11 is 26, 26 plus 6 is 32, divide by 2 and that is equals to 16 meter। Now ये 16 मीटर है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग फाइंड कर सकते हो। एरिया इज इक्वल्स टू √S, S minus A, S minus B, S minus C। ओके, S क्या है? 16, then 16 minus 15, 16 minus 11 and 16 minus 6। ओके, नाउ 16 मतलब सीधा आ जाएगा बाहर 4, बराबर है, स्क्वायर रूट है। 16 minus 15 1 होता है, ये वापस हो गया 4, सॉरी 5, 16 minus 11 5 होगा एंड 16 minus 6 होगा 10। 4, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, 5 into 5 into 2, ये 2 बार 5 आ गया, ये बाहर निकला तो 4 into 5 √2, 4 5 are 20, √2 meter square is your answer for sum number 3rd। Sum number 4th, find the area of triangle two sides of which are 18 and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। So what is given? A is given 18 centimeter, B is given 10 centimeter and P is given 42 centimeter। और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो P से पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? C मिलने के बाद S and then we will find the
फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। P क्या है? A प्लस B प्लस C बराबर है P is given 42, 18 plus 10 plus C. 42 is equals to 28 plus C. So 42 minus 28 is nothing but 14 and that is equals to C. C की वैल्यू मिल गई 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर्स, यूनिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूनिट्स लिखना भूलना मत। तो C इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर हो गया। नाउ नेक्स्ट आप लोगों को क्या फाइंड करना है? S फाइंड करना है। मैंने आपको बताया कि A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो P दिया हुआ है उसका एग्जैक्टली हाफ कर दो तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो S इज इक्वल्स टू P अपॉन 2 42 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, राइट? एरिया इज नथिंग बट अंडर रूट S minus A, S minus B, S minus C. 21, then 21 minus 18, 21 minus 10, and 21 minus 14. Okay. 21 को मैं स्प्लिट कर दूंगा। कैसे स्प्लिट करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के टर्म में 7 3 21 minus 18 is 3. This is 11. And 21 minus 14 is again 7. 2 बार 7 मतलब बाहर, एक बार 7 आएगा। 2 बार 3 मतलब बाहर 3 और 11 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो as it is रहेगा। तो 7 3s your final answer is 21 under root 11 centimeter square, and that's the end of sum number 4th. Sum number 5th. Sides of triangles are in ratio 12 is to 17 is to 25 and perimeter given is 540 centimeter. Now सबसे पहले ये जो रेशियो है ना उसको हम लोग assumption करेंगे। Let A is equals to 12x, B is equals to 17x and C is equals to 25x। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी रेशियो के टर्म में कुछ भी आए तो आपको क्या एज्यूम करना है? x। तो 12x, 17x and 25x. Okay, now perimeter is given. Perimeter is nothing but A plus B plus C. 540 is equals to 12x plus 17x plus 25x. So 540 is equals to 12 plus 17 is 29 plus 25 is 54x. So x की वैल्यू आ जाएगी 540 डिवाइड बाय 54 which is equals to 10 सेंटीमीटर। तो x अगर 10 है तो can you tell what will be your A? A is 12 into 10, 17 into 10 और ये हो गया 25 into 10। ये हो गया 120, 170, 250। Now A, B और C की वैल्यू मिल गए हम लोगों को इन सेंटीमीटर्स ऑब्वियसली। अब क्या फाइंड करेंगे? अब फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर S which is equals to P by 2 क्योंकि पेरीमीटर दे दिया है ऑलरेडी। So 540 divided by 2 is nothing but 270 centimeter. S भी मिल गया। Now can we find area? Area is nothing but under root S, S minus A, S minus B and S minus C. Under root S 270, 270 minus 120, 270 minus 170, 270 minus 250. Okay. Now 270 को अभी भी मैं ऐसे ही रहने देता हूं as it is। ये हो गया 150 बराबर है।
ये हो गया 100 और ये हो गया 20, बराबर। नाउ 20 को जब मैं 100 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो वो हो जाएगा क्या 10, बराबर है, वो हो गया आपका 10। अब ध्यान से देखना 27 इंटू 10, 15 इंटू 10 एंड 2 इंटू 10, राइट, ओके। 10 दो बार है, वापस बाहर आ गया तो 10 का हो जाएगा 100, या तो फिर ऐसा लिखो 10 इंटू 10, अंडर रूट में जाएगा। 27 जो है उसको लिखूंगा 9 3 15 को लिखूंगा 3 5 ये 2 एज इट इज है, और ये 10 को लिखूंगा 2 5 ओके। देन व्हाट, ध्यान से देखो 9 मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। लेट मी रिमूव दिस साइड फर्स्ट। सो द 10 इंटू 10 हो गया आपका 100। 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है मतलब 3। अब 3 दो बार है मतलब सिंगल टाइम बाहर, 5 भी दो बार है तो सिंगल टाइम बाहर, और 2 भी दो बार है तो सिंगल टाइम बाहर। सो योर आंसर विल बी 100 इंटू ये हो गया 9 और ये हो गया 10। So your final answer is 9000 centimeter square. Area of triangle is 9000 centimeter square. Sum number 6. An isosceles triangle has a perimeter 30 centimeter. Isosceles triangle का मतलब होता है दो साइड इक्वल, and each of the equal sides is 12 centimeter. Let's say the equal side A is equals to be 12 centimeter and B is equals to be 12 centimeter. Find the area of triangle. तो सबसे पहले हम लोग C find करेंगे, then S find करेंगे and then area of triangle find करेंगे, बराबर है। तो C find करने के लिए फॉर्मूला है P is equals to A plus B plus C। 30 is equals to 12 plus 12 plus C। 30 is equals to 24 plus C। ये भाई साहब यहाँ पे आएंगे तो माइनस होगा, तो C is equals to 30 minus 24 and that is equals to 6 सेंटीमीटर। C मिल गया। अब S क्या है, स्ट्रेट अवे P अपॉन 2। P है 30, 30 डिवाइड बाई 2 that is equals to 15 सेंटीमीटर। हमेशा एक चीज याद रखो, हमेशा के लिए आपका जो सेमी पेरीमीटर होगा विल बी ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल थ्री साइड्स। हमेशा कोई भी सम देख लेना, एस जो है वो ए बी और सी से बड़ा ही होगा। अगर बड़ा नहीं आता है तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। सो एस मिल गया तो एरिया भी मिल जाएगा। एरिया इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, S minus B and S minus C. S is 15. 15 minus 12. 15 minus 12 क्योंकि यहाँ पे है A और B, और C हम लोगों ने फाइंड किया 15 minus 6। 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 3 into 5 लिखता हूं। 15 minus 12 is 3, again 3 and 15 minus 6 is 9. This is a perfect, तो 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर 3, अंदर क्या बच जाएगा रूट 15। So final answer is 3 3s are 9 root 15 centimeter square, and that's the end of our exercise 12.1. Thank you very much बच्चों।